بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں جواد باقر۔ سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبروں کی تفصیلات۔ وفاقی حکومت کا وفد بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل کو منانے پہنچ گیا۔ فیصلہ واپس لینے کی درخواست کر دی۔ سربراہ بی این پی نے اپنے تحفظات حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیے۔ وزیر دفاع پرویز خٹک اور وفاقی وزیر اسد عمر نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل سے ملاقات کی اور ان سے فیصلہ واپس لینے کی درخواست کی۔ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا تھا کہ ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں، بی این پی مینگل کے تحفظات کو جلد دور کیا جائے گا، آئندہ بھی سردار صاحب کے ساتھ نشستیں ہوں گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سردار اختر مینگل کا کہنا تھا کہ پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اپنے تحفظات حکومتی وفد کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اب تک کوئی براہ راست رابطہ نہیں کیا۔ اسد عمر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یقین رکھتی ہے کہ پاکستان کے ہر حصہ کو ترقی اور حقوق نہ ملے تو ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ چینی انکوائری کمیشن کیس میں حکم امتناع خارج کر دیا گیا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کی چینی رپورٹ پر کارروائی روکنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام اداروں کو چینی رپورٹ پر کارروائی کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مختصر فیصلہ میں شوگر ملز ایسوسی ایشن کی چینی رپورٹ پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی۔ 2 صفحات پر مشتمل فیصلہ میں کہا گیا کہ درخواست گزار سمیت کوئی بھی فریق ہو، اس کا فیئر ٹرائل کا حق متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا نیب کو کیس بھیجنا درست ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختصر فیصلے کے مطابق انکوائری کمیشن کی تشکیل درست تھی۔ قیمت کا تعین کرنا ہمارا نہیں، ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ وفاقی وزراء فیصلے پر بیان بازی نہیں کریں گے۔ فیصلے میں چینی کمیشن پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر کو تفویض کردہ اختیارات غیر قانونی قرار دے دیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی کابینہ کا شہزاد اکبر کو اپنے اختیارات تفویض کرنا خلاف قانون ہے۔ کابینہ کا شہزاد اکبر کو اختیارات دینا سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ چینی کمیشن رپورٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمران خان ایک بار پھر سرخرو ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چینی کمیشن کی رپورٹ کے فیصلے پر رد عمل میں شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ عدالت نے شوگر رپورٹ پر حکم امتناعی خارج کر دیا۔ کپتان ڈٹ کر کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس کام کو منطقی انجام تک پہنچائے گا۔ پاکستان میں بہت کچھ پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ کرسی پر خان بیٹھا ہے، کوئی عام عوام کے مفاد کا سوداگر یا سودے باز نہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی کوئی آیا تو ضرور بات کریں گے، مگر حکومت میں واپس جانا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اپوزیشن نے ہماری بات سنی۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ بی این پی اختر مینگل کا کہنا تھا کہ حکومت سنجیدہ ہے تو بلوچستان کے مسائل حل کرے، مسائل حل ہوں تو پورا بلوچستان پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے گا۔ حکومت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے؟ حکومت سے اتحاد کا تعلق ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ہی کبھی ایسا ہو کہ فلور آف دا ہاؤس کسی نے جو ہے حکومت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہو، خاموشی میں کیا ہو، رات کے اندھیرے میں کیا ہو، واٹس ایپ پہ کیا ہو یا ٹویٹر پہ کیا ہو۔ بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی ہے جس نے یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے ہم ان کو وارن کرتے رہے، بارہا ان کو وارن کرتے رہے، جب وہ ہمیں مذاکرات کے لیے آئے تو ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے رہے۔ 1973 سے لے کر بلوچستان میں جو ہے انہوں نے اکٹھی حکومت کی اور اکٹھی اپوزیشن میں رہے۔ 93 میں مولانا واسع بھی ساتھ تھے ہمارے، میں ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا، اور اس کے بعد حکومت جب بنی ہم اکٹھے رہے۔ ابھی بھی بلوچستان میں اگر اپوزیشن میں ہیں تو 2 بڑی جماعتیں، جماعت علماء پاکستان بلوچستان نیشنل پارٹی اور پی کے میں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، باقی تو سب حکومت میں ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ ہم نے نہ، اور اچھا ایک بات واضح کروں میں، جب میں نے اعلان کیا اس وقت بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مطالبات رکھ کے اب بھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے آج بھی میری بات ہوئی تھی مولانا صاحب سے، اپوزیشن نے ہمیں چاہا، ہمیں بلایا، ہماری باتیں سنی، بالکل بات کرنے کے لیے تیار۔ اور اسی طرح اگر کوئی بھی آتا ہے
हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ भी काफ़ी आई हैं, वो भी उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हुकूमत में जाना अब वो शायद मेरे अपनी ज़ात की बस में नहीं थी, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए, हमारे दोस्त बलूचिस्तान के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला को फर्द वाहिद उसको नहीं तब्दील कर सकता। अगर हुकूमत वाकई इन मामलात में दिलचस्पी रखती है और सीरियस है, वो बलूचिस्तान के इन जुमला मसाइल को हल कर लें। BNP नहीं, पूरा बलूचिस्तान जो है PTI ज्वाइन कर ले। जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। सियासी जमातों के साथ राबते का अमल शुरू कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 18वीं तरमीम NFC अवार्ड में अगर रद्दोबदल की कोशिश की गई तो हर सतह पर मुज़ाहमत की जाएगी। हम पर नैब या एहतसाब का दबाव नहीं, एहतसाब सियासी हथियार है जो अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला आया और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासी सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियाँ और इसी तरीके से दूसरे सूबों में दूसरी जमातें भी आल पार्टीज़ कर रही हैं। ये बाहमी रवाबित का एक अमल है। जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुँच जाएंगे तो फिर मरकज़ी सतह पर एक आल पार्टी की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त एक माहौल हम बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़। जामिया बनोरिया के मोहतरम और मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम इंतकाल कर गए। तर्जमान जामिया बनोरिया के मुताबिक मुफ्ती नईम को तबीयत ख़राब होने पर अस्पताल ले जाया गया मगर वो रास्ते में ही इंतकाल कर गए। तर्जमान के मुताबिक मुफ्ती नईम का कोरोना टेस्ट मनफी आया था। मुफ्ती नईम दिल के आर्जे में मुब्तला थे और साइट एरिया में वाक़या जामिया बनोरिया के मोहतरम थे। उनकी उम्र 65 साल की थी जबकि वो खालिक हकीकी से जा मिले। मुफ्ती नईम के इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला मुराद अली शाह, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी और मजहबी शख्सियात ने दुख और अफसोस का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करें। हुकूमत सिंध के तर्जमान मुर्तज़ा वहाब में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट करवाया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया। मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक उन्होंने खुद को घर में ही करंतना कर लिया। उन्होंने कहा कि इनमें कोरोना की अलामात नहीं हैं और तबीयत भी बेहतरी महसूस कर रहा हूँ। तर्जमान सिंध हुकूमत ने दोस्तों और अहबाब से दुआओं की दरख्वास्त की है। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब रुपए कम करना नाइंसाफी है। पंजाब को भी पूरे पैसे नहीं दिए गए। जब से वबा आई हर मुतनाज़ मसला छेड़ा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि शहबाज शरीफ सेहतयाब होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। APC में NFC अवार्ड पर मुशावरत करेंगे। NFC अवार्ड के मसले पर तमाम अपोजिशन एक मौक़िफ़ देगी। लास्ट 25 years ये लोकस का हमला सबसे बड़ा हमला है जिसके बारे में हम एक साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी सतह पे और हुकूमत सिंध भी वफाकी हुकूमत से और PTI हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इसको सीरियसली ले और इसका मुकाबला करने के लिए तैयारी करे।
उस इशू को भी नज़रअंदाज किया उस इशू को ना इन लोकस का मुकाबला करने के लिए ना ही हमारा ज़राए मईशत और हमारा किसान को वो मदद पहुंचाने के लिए काफ़ी वसाइल रखे गए थे। हमारा टेस्टिंग कैपेसिटी उस तेज़ी से इजाफा नहीं कर पा रहे थे जिससे ये वबा स्प्रेड हो रहा था। लेकिन अब भी वफाकी हुकूमत ने उस सपोर्ट सूबाई हुकूमतों को नहीं दी गई। हम जो उनका नाम का PSDP में पैसा रखा गया है कोविड के लिए 70 बिलियन रुपीस, वो कहते हैं हमने कोविड के लिए रखा, वो कोविड के लिए नहीं, वो आपका सेहत का निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए नहीं, ये उनके अपने MPAs और अपने MNAs के इलेक्शंस के स्लश फंड है। वफाकी हुकूमत को पानी के मंसूबे पे खर्च करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को रोज़गार दिलवाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हैं उन पे पैसा रखना चाहिए, और वो नहीं रखते थे। हाँ, इस वक्त एक पैंडेमिक के दौरान जब आप कह रहे हो कि सूबाई हुकूमतें मुकाबला करें, जब आप कह रहे हो कि हम अपना सूबाई बजट को इस्तेमाल करें, हम अपना सालाना सेहत का बजट से ग्लोबल वबा का मुकाबला करें, ऊपर से हम उस बजट में आप 229 बिलियन रुपीस कम देते हो। और ये नाइंसाफ़ी सिर्फ सिंध के साथ नहीं हो रहा है, पंजाब को भी कम मिला है, पंजाब को भी 400 बिलियन कम मिला है। बाकी सूबों के साथ मैंने जिक्र किया था अपना नेशनल असेंबली स्पीच में। ये वक्त था सूबाई हुकूमतों को हर अमल का रद्द अमल होता है। बिलावल ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का कहना है कि पीपल्स पार्टी खुद कुछ करती नहीं है और दूसरों को करने भी नहीं देती। बिलावल भुट्टो की सियासत सिर्फ बयानात तक महदूद है, एहसास पर गेम पर भी वो सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर मुराद सईद का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा दौरे की दावत देता हूँ, उन्हें दिखाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में 7 बरसों में क्या किया। PP चेयरमैन हमें भी सिंध में दिखाएं उन्होंने अब तक क्या किया। मुराद सईद का कहना था कि गुर्बत के लिहाज से फंड्स मुख्तस होने से सिंध का 10% हिस्सा बढ़ा। बिलावल जिस हल्के से भी मुंतखब हुए वो अभी भी पसमानदा है। मुल्क से गुर्बत का खात्मा वजीर आजम का मिशन है। वफाकी वजीर का कहना था कि कराची में पानी का मसला बना हुआ है, टिड्डियों के हमले से सिंध में छोटे किसानों का नुकसान हो रहा है। सिंध जहां टिड्डियों का हमला हुआ वहां हुकूमत ने गाड़ियां हड़प करने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद को जुज़वी खोल रहे हैं। कोरोना के बायस समुंदर पार पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। वज़ीर आज़म ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि फ़ज़ाई हदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापसी की सहूलियात देना है। वबा के दौरान समुंदर पार पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। समुंदर पार पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसले पर हमें फ़ख्र है। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान का कहना था कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को वापसी पर हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। समुंदर पार मुखय्यर पाकिस्तानियों की जानिब से हम वतनों की मदद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वबा के दौरान दयारे गैर में मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों की मदद काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं बहरान पैदा करने वाले माफियाज को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। हर किस्म के माफिया का मुकाबला करना है, उन्हें बेनिकाब भी करना है। कौम से सच का वादा किया है, कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। सच सामने लाने का वादा पूरा करते हुए हकायक सामने लाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही रोज में रिकॉर्ड हलाकतों ने इक़दामात को बेसूद साबित कर दिया। 24 घंटों में मजीद 153 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3382 हो गई। एक ही रोज में रिकॉर्ड 6604 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,71,666 हो गई। अब तक सेहत याब होने वालों की तादाद 63,504 हो गई। पाकिस्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। वायरस ने 24 घंटों में रिकॉर्ड 153 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1013, पंजाब में 1347,
खैबर पख्तूनख्वा में 790, बलूचिस्तान में 100, गिलगित बल्तिस्तान में 21, आजाद कश्मीर में 17 और इस्लामाबाद में 95 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 6,604 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,71,666 हो गई। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलूचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,270, आजाद कश्मीर में 803 मरीज हो चुके। एक तरफ पाकिस्तान की सूरत हाल से अपडेट किया और अब दुनिया भर से आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,65,000 हो गई। मरीजों की तादाद 87,95,000 तक जा पहुंची। 46,50,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,65,000 जिंदगियां निगल चुका। मरीजों की तादाद 87,95,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,21,414, ब्राजील में 49,090, बरतानिया में 42,461, इटली में 34,561, स्पेन में 28,315, फ्रांस में 29,617, जर्मनी में 8,960 अफराद हलाक हो चुके। कनाडा में 8,346, रूस में 8,000, भारत में 12,972, टर्की में 4,905, ईरान में 9,507, अफगानिस्तान में 560 और सऊदी अरब में 1,184 अमवात हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस इस खुद नोटिस केस पर पंजाब हुकूमत ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। बताया कि योमिया 11,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना से मुतल्लिका अमूर अंजाम देने वाले अमला सफाई को हिफाजी सामान फराहम कर दिया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब हुकूमत की तरफ से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबा भर में कोरोना मरीजों के लिए 628 वेंटिलेटर्स मुख्तस हैं। योमिया 11,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। टिड्डी दल के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि रबी की फसल को टिड्डी दल से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। टिड्डी दल ने मजमूई तौर पर पंजाब का काश्तशुदा 25,000 एकड़ रकबा भी मुतासिर किया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं करप्शन के टिड्डी दल पाकिस्तान की बुनियादों को खा चुके। साबिक अदवार में ये टिड्डी दल पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करते रहे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि माजी के करप्ट हुक्मरानों की करप्शन की दास्तानें आज बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। माजी की हुकूमतों की करप्शन के बायस अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम रहे। पाकिस्तान को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता हर सतह से करप्शन का खात्मा है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बूतों को पाश पाश किया है। करप्शन का खात्मा हमारी हुकूमत का सरे फहरिस्त एजेंडा है। करप्ट अनासिर के बेलाग एहतसाब से ही पाकिस्तान अपनी असल मंजिल हासिल करेगा। वफाकी वजीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ फ़खर इमाम का कहना है कि आने वाले दिनों में ईरान और ओमान से टिड्डी दल के हमले का खदशा है। फ़खर इमाम का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए इदारों की काविशें काबिल तारीफ हैं। मुतासिरा इलाकों में टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से भी राबिते में हैं। टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए अपनी इस्तेदाद कार बढ़ा रहे हैं। टिड्डी दल से पैदा सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी की जा रही है। वफाकी वजीर का कहना था कि मुतासिरा इलाकों में ऑपरेशन के साथ सर्वे भी किया जा रहा है। अफ्रीका से बाजरिया ओमान और ईरान टिड्डी दल के आने का खदशा है। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 26 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। इसमें से 14 अरब रुपए विफाक और 12 अरब सूबे में देंगे। सीटीडी ने कराची में 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों का ताल्लुक एमकेएम लंदन से है। सीटीडी कराची ने पीराबाद में टारगेट किलिंग, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलव्वस 2 मुलजिम मुदस्सिर और मिनहाज शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम गैर कानूनी असलहा की खरीदारी में मुलव्वस थे। गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश जारी है। मुलजिमों के साथियों की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी की टीमें तश्कील दे दी गईं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में मुहाजिरीन के लिए UNHCR के काबिल सताइश काम को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान में अफगान मुहाजिरीन और मेज़बान बरातियों के लिए UNHCR की अपीलों के मुस्बत रद्द-ए-अमल का मुंतज़िर है। वजीर खारिजा ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने 40 साल से ज़ायद अरसे से लाखों अफगान पनाह गज़ीनों की मेज़बानी करते हुए फरागदिली, यकजहती और शफकत का मिसाली मुजाहिरा किया है। पाकिस्तान आलमी जिम्मेदारियां
نظام بانٹنے کے اصول اور افغانستان کے پائیدار اور جلد پرامن حل کے عزم کی اپیل کا اعادہ کرتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ 40 برسوں میں پاکستانی عوام نے لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی میں مثالی فراخ دلی، یکجہتی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ ان انسانی اقدار نے صحت عامہ، تعلیم، معاش اور معاشرتی نقل و حرکت میں پاکستان کی جامع پالیسیاں تشکیل دی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے ایک مرتبہ پھر امریکی شہری سینتھیا ڈیریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی۔ رحمان ملک کے خلاف سینتھیا ڈیریچی کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تھانہ بنی گالہ پولیس کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ سینتھیا امریکی شہری ہے جس نے بذریعہ ٹویٹس کمنٹس کیے۔ اگر سینتھیا ڈیریچی کے خلاف کارروائی مقصود ہے تو FIA سائبر کرائم برانچ سے رجوع کیا جائے۔ دوسری طرف سابقہ وزیر داخلہ اور رہنما پیپلز پارٹی رحمان ملک کے خلاف امریکی شہری سینتھیا ڈیریچی کی درخواست پولیس نے مسترد کر دی۔ پولیس تفتیش نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کو الزامات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق سینتھیا ڈیریچی کے پاس کسی قسم کا ثبوت نہیں، درخواست ناقابل کارروائی ہے۔ دھمکیوں کے الزامات کے حوالے سے سینتھیا ڈیریچی کسی کا فون نمبر، تاریخ اور نہ دھمکی کا وقت بتا سکیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا عدم ہونے پر پاکستان بار کونسل نے عدالت کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین عابد ساقی نے اپنے بیان میں کہا کہ آئینی پیٹیشنز پر تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نظر ثانی درخواست دائر کریں گے۔ حکومتی دباؤ میں FBR سے شفاف تحقیقات کی امید نہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکلاء نے بھی نظر ثانی درخواست پر مشاورت شروع کر دی۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ FBR کو کیس بھیجنے کے پہلے ہی مخالفت کر چکے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ کرونا وائرس کے باعث دبئی میں پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کو دبئی میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے وار نہ تھمے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 34 تک جا پہنچی۔ ابو ظہبی میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ پاکستانیوں کو کرونا ٹیسٹنگ کی مفت سہولیات کی فراہمی پر پاکستانی سفیر نے عرب امارات حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ بالائی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک اور موسلادھار بارش کی نوید سنا دی گئی۔ 25 جون سے باقاعدہ مانسون بارشوں کا آغاز بھی ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ اور بلوچستان میں شدید گرم رہے گا۔ موسم کا حال بتانے والوں نے جڑواں شہروں سمیت لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالہ، جہلم، ہری پور، ایبٹ آباد، مظفر آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں اور تھر پارکر میں بھی پری مانسون کی نوید سنائی۔ بارشوں سے گرمی کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہوگی۔ عالمی افق پر ہو کیا رہا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے۔